Hello students, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic chemical bonding in the molecular structure. In previous class, we have discussed about the theoretical portion of hybridization. In today's class, we are going to discuss about the hybridization, how to calculate hybridization, how to assign hybridization of any of the molecule. So this is again very important to calculate, to assign the hybridization of any of the molecule. So let us start our topic, hybridization. Hybridization can be assigned with two methods. There are two methods by which we can assign the hybridization. One is, सबसे पहले हम बात करते हैं about द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखिएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल वी कैन कैलकुलेट, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा उस अकॉर्डिंगली आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा. तो पहले एक बार मैं वो वाली चीज़ जो है वो आपको क्लियर करवाती हूँ. इफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ, चलिए उस तरफ लिख देते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड. If number of hybrid orbital is 2, then the hybridization will be sp. The geometry will be linear. If the number of hybrid orbital is 3, it will be sp2 with the shape trigonal planar. Now, if the number of hybrid orbital is 4, then the hybridization will be sp3 with the geometry tetrahedral. Now, if the number of hybrid orbital is 5, then the hybridization will be sp3d with the structure trigonal bipyramidal. With the geometry of the trigonal bipyramidal. 6, then it will be sp3d2 with the geometry octahedral. 7, sp3d3, and this has the geometry pentagonal bipyramidal. These are the number of hybrid orbitals, then the hybridization. If the number of ये आपको अच्छे से जो है वो लर्न करना पड़ेगा. If the number of hybrid orbital is 2, the hybridization will be sp. Geometry भी मैं यहाँ पे साथ के साथ में जो है वो लिखती हूँ, geometry will be linear. Trigonal planar here. Tetrahedral. sp3 it will be trigonal bipyramidal. और इन सब ज्योमेट्रीज की बात हमने कर ली थी इन प्रीवियस लेक्चर. 6, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल. इन ज्योमेट्रीज की बात हमने कर ली थी. दीज आर द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जियोमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन. इफ द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 2, then the hybridization will be sp and the geometry will be linear. If number of hybrid orbital is 3, then the hybridization will be sp2 and the geometry will be trigonal planar. 4, sp3 tetrahedral. 5, sp3d, that is trigonal bipyramidal. 6, if the number of hybrid orbital is 6, then the hybridization will be sp3d2 and the geometry will be octahedral, जिसमें 4 बॉन्ड्स इन अ प्लेन होते हैं और 2 आउट ऑफ प्लेन होते हैं. एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा. नाउ इफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 7, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3. पेंटागोन बनेगा इन अ प्लेन और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, बाइपिरामिडल जो है वो जियोमेट्री का फॉर्मेशन करेगा. नाउ दीज आर द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद देयर जियोमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन. नाउ इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द calculation
calculation, how we can calculate the hybridization. There are two methods to assign the hybridization, and first method is hybridization. Number of hybrid orbital निकालने का ये जो है वो फॉर्मूला है, number of hybrid orbitals can be calculated by two methods. One is number of the sigma bond plus number of the lone pairs. By this formula we can assign the hybridization, number of the sigma bonds and the number of lone pairs. अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो है वो बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन. चलिए पहले हम इसी केस को डिस्कस करते हैं. व्हेन द structure is known and we are calculating here the hybridization by the number of the sigma bonds and lone pair as well. देखिएगा, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तब तो आप ये मेथड जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन इन जिन मॉलिक्यूल्स का आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो उसके लिए जो है वो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है. बाकी जनरल मॉलिक्यूल्स के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. बहुत ईजी है, फटाफट से जो है वो कैलकुलेट होता है. चलिएगा बात करते हैं मीथेन की. बात करते हैं व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन. किसका होगा? सेंट्रल एटम ऑफ कोर्स, दैट इज ऑफ कार्बन. CH4 that is carbon. Now we are talking about the structure. तो हमें पता है ये कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन्स के साथ में सिंगल बॉन्ड जो है वो बनाते हुए प्रेजेंट होता है. एंड द सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड. Double bond means 1 sigma 1 pi. Triple bond means 1 sigma 2 pi. Okay, चलिए. Sigma, sigma, sigma and sigma. There are 4 sigma bonds in the methane molecule. लोन पेयर कहाँ पे? लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ कोर्स. चलेगा. कार्बन पे अगर लोन पेयर की बात करूँ तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं? बात की थी हमने पहले की क्लासेस में भी. लोन पेयर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, दैट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट आर लोन पेयर. वो लोन पेयर होते हैं. टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के जो जितने भी हैं वो कहाँ काम आ रहे हैं? टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड एज लोन पेयर ऑल्सो, राइट. जिसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसने नहीं किया वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरह प्रेजेंट होते हैं. ओके, चलेगा. टोटल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसमें से जितने ने बॉन्ड बनाया वो अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएंगे. चलेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ मीथेन. कार्बन हैज द एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2 and 2p2 is the electronic configuration of it. इसमें मैं वैलेंस शेल की बात करूँ तो सेकंड शेल इज वैलेंस शेल here, and in the second shell अगर हम बात करें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 in the s, 2 in the p. टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 4 minus 1 2 3 4. all the 4 electrons of carbon are taking participate in the bond formation here, means bond pair भी 4 है. 4 minus 4 will be 0. there will be no lone pair in कार्बन में कोई भी लोन पेयर जो है वो नहीं है. चलेगा. 4 sigma plus 0 lone pairs, it will be 4. when the number of hybrid orbital is 4, look at here, 4 अगर जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आपके पास में, देन द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड द जियोमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल एज वेल. सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल. हाइब्रिडाइजेशन में हो क्या रहा है? आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर हियर व्हाइल 0 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन. सेंट्रल एटम पर जो है वो आपको लोन पेयर यहाँ पर देखना है. 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल विल बी 4. ये आपके पास में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आया जो कि जितना भी है उस अकॉर्डिंगली उसका हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होता है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. यस,
पहले हम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। चलिएगा, फिर लेट्स टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन। इस बार मैंने डबल बॉन्ड वाला केस लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। स्ट्रक्चर भी मैंने साथ के साथ जो है वो बनाई है। इफ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला C2H2, राइट, double bond between the carbon and carbon while single bond between carbon and hydrogen here. Have a look now. Sigma bond, one sigma, one pi, right? हमने बात किया था कि in double bond there is one sigma bond and one pi bond. अच्छा, इसके अलावा हमने एक और जो है वो बात की थी, और वो ये थी कि pi bonds are not participating here, are not involving here in the hybridization. पाई बॉन्ड कभी भी जियोमेट्री डिसाइड करने में हेल्प नहीं करते, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो जियोमेट्री को बताता है। दैट्स वाई पाई बॉन्ड जो है वो आपके पास में जियोमेट्री को एक्सप्लेन कभी भी नहीं करेगा। सो हैव अ लुक हियर, इन दिस केस ऑफ इथीन, दिस इज केस ऑफ इथीन। इथीन है ये, इथीन, ओके। Number of the sigma bonds plus number of the lone pair, this is the formula to calculate the number of hybrid orbitals. Have a look here, इस कार्बन का जो है वो मैं अगर असाइन करूँ हाइब्रिडाइजेशन तो देखिएगा 1 2 3 सिग्मा वाइल 0 लोन पेयर अगेन। अभी हमने बात किया था कि कार्बन जो है उसके पास में 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, एंड ऑल द 4 बॉन्ड्स आर टेकिंग पार्टिसिपेट हियर टू फॉर्म द बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एब्सेंट हियर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट हियर। चलेगा 3 sigma 0 lone pair overall 3. If the number of hybrid orbital is 3, then the hybridization will be sp2 with the geometry trigonal planar. तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। चलिए नेक्स्ट कार्बन की अगर बात करें तो देखिएगा अगेन सेम 1 sigma 2 sigma and the 3 sigma while 0 lone pair means it will also have the same hybridization, sp2 hybridization। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो है वो मैं देती हूँ आपको इथाइन मॉलिक्यूल लीजिए और सेल्फ इसको जो है वो करने का ट्राई कीजिए। इथाइन दैट इज C2H2, वेट फॉर अ सेकेंड, इथीन इज C2H4 नॉट C2H2, इथीन है वो C2H4 है, वाइल C2H2 इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन दे रखा है, इथीन दे रखा है, इथीन का हमने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकाला। इथेन में अगर निकालेंगे वही वाला जो है वो आपके पास में आएगा C2H6। In the C2H6 1 2 3 4 sigma, 4 sigma plus 0 lone pair, it will be sp3। sp3 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन इन द इथेन, sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन इन द इथीन, वाइल इथाइन के लिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन असाइन कीजिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम, डू इट। यस, आई होप हो गया होगा। C triple bond C, single bond H in the single bond H. This is the structure of ethyne molecule here. In one triple bond there is 1 sigma while 2 pi. 1 sigma 2 pi bond जो है वो होते हैं in triple bond। चलिएगा बात करें अगर यहाँ इथाइन की तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं, ये मैं C2H2 इथाइन की बात कर रही हूँ, ये मैंने निकाला था 4 C2H4 that is ethene and this is for ethane molecule. Have a look here, 1 2 3 4, all the 4 electrons, all the 4 valence shell electrons of carbon are taking participate here in the bond formation. 3 electrons are participating to form the bond with carbon,
ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, while one electron of carbon is taking participate to form the bond with hydrogen। इस तरह से कार्बन के 4 valential electrons are taking participate in the bond formation, means again the number of lone pair is 0 here and 1, there is only 1 and 1 also, there is 2 sigma bonds, देखिएगा 1 sigma with the carbon while 1 sigma with the hydrogen as well। तो यहाँ पे 2 sigma है प्लस 0 lone pair जो है वो प्रेजेंट है, it will be 2 and if the hybrid orbitals, number of hybrid orbital is 2, then the hybridization will be sp। sp hybridization होता है यहाँ, sp हाइब्रिडाइजेशन है व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद अ ट्रिपल बॉन्ड से अगर अटैच है तो यहाँ पर sp होगा, मींस जो भी केस आपके पास में एल्काइंस के हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन है वो हमेशा sp हाइब्रिडाइज होगा, while the case of alkenes when the carbon is attached with another carbon with double bond it will have the sp2 hybridization, and in the case of alkanes when carbon form 4 single bonds, 4 sigma bonds, then the hybridization will be sp3। This is the case of alkene in the alkyne as well। चलिए अब आगे जो है वो और मॉलिक्यूल्स को जो है वो बात करते हैं और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है वो पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन असाइन करना। सो प्रैक्टिस जो है वो करते रहिए। यहाँ जो मैं मॉलिक्यूल दे रही हूँ आप वीडियो को स्टॉप करके उसे सेल्फ भी जो है वो कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप डूइंग। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू डू दिस, that is the benzene। this is structure of benzene। आप बेंजीन में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। आई एम गिविंग यू टाइम, डू इट। यस, आई होप आपका हो गया होगा। अगर किसी का बाकी है यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड फर्स्टली डू योर सेल्फ, आफ्टर दैट उसे चेक कीजिएगा। चलिए have a look here, this is the structure of benzene। in the benzene यहाँ जो रिंग बनाई है ये जो रिंग का फॉर्मेशन है ये क्या शो कर रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आप इसे डबल बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं। दीज डबल बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड हियर इन द रिंग, इसीलिए आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। चलिएगा इसे मैं और अगर सिंप्लीफाई करूँ तो कार्बन इज प्रेजेंट हियर, 1 2 3 बॉन्ड्स आर ऑलरेडी फॉर्म हियर, वाइल 1 बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है उसे यहाँ नहीं शो किया जाता है इन द रिंग। सो नाउ हैव अ लुक। अभी यहाँ पे देखिएगा कार्बन 1 2 3 4 ऑल द 4 वैलेंसीज आर कंप्लीट हेयर, सेटिस्फाइड हेयर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एज वी नो, तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नाउ 1 सिंगल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा, single 1 sigma, this is double bond means 1 sigma, while 1 pi bond is here, again the hybridization will be sp2। अभी बात किया था कार्बन विद डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसका होगा। कार्बन विद सिंगल मतलब 1 with 1 double bond will have the hybridization sp2। चलिए एक बार निकालते हैं। नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ द लोन पेयर्स। सिग्मा बॉन्ड कितना है यहाँ पे 1 2 3, there is 3 sigma bonds while 0 lone pair, again carbon valence electron 4 in carbon and all the 4 electrons are taking participate to form the bond here। So 3 sigma while 0 lone pair it will be 3, and if the number of hybrid orbital is 3 then the hybridization will be sp2 here, right। ये हुआ अबाउट द बेंजीन मॉलिक्यूल। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की में जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। चलिएगा
BeCl2. I am firstly taking the example of BeCl2. Be that is बेरिलियम Cl2 क्लोराइड है, ये बेरिलियम क्लोराइड है, राइट। BeCl2 में अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो इट हैज द एटॉमिक नंबर 4, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4 है इसके पास, सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2 है इसके पास। व्हेन द बेरिलियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, राइट, 2 + 2 4, atomic number is 4, the electronic configuration is 1s2 2s2, means how many valence shell electron are here? Only 2 valence shell electron are here, and both the electrons are taking participate in the bond formation. It means यहाँ पे lone pair जो है वो कितना आएगा? Again 0. बेरिलियम की बात करें, number of sigma bond plus number of lone pair. Sigma bond कितना है? 1 and 2 sigma bonds are here, while 0 lone pair on beryllium, and it will be 2. Hybridization will be as p, geometry will be linear. This is about the BeCl2 molecule. चलिए आगे बात करते हैं, keep watching. Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज BF3 मॉलिक्यूल की बात कीजिए। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p1. It has 3 valence shell electron, and all the 3 valence shell electrons are taking participate in the bond formation. ये इसका स्ट्रक्चर है, राइट, ओके। 1 sigma 1 sigma 1 sigma, overall 3 sigma plus 0 lone pair, because valence shell electron 3 है, and all the 3 valence shell electrons are taking participate in the bond formation here. It will be 3, and the geometry will be geometry will be trigonal planar, and the hybridization will be sp2. sp2 hybridization है, geometry होता है trigonal planar. Look at the molecule. BF3 molecule has the geometry trigonal planar. All the 3 bonds are present in the same plane here. चलिए next हम बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल का बात करते हैं। अब हम कुछ ऐसे केस लेते हैं विच हैव लोन पेयर। चलिए मीथेन की हमने बात की, NH3 अमोनिया की बात करते हैं पहले, उसके बाद हम लेंगे एग्जाम्पल ऑफ वाटर। ओके, NH3 दैट इज अमोनिया। What will be the hybridization of nitrogen here and ammonia? Central atom का hybridization will always the sign of the central atom. कीजिए इसको। NH3 में hybridization जो है वो बताइए। Yes, I hope हो गया होगा। What will be the hybridization of NH3? Yes, it is sp3. अगर आपका sp3 आया है, करेक्ट है, नहीं आया है तो वापस प्रैक्टिस कीजिए, वापस जो है वो नोटिस कीजिए। Have a look here, NH3 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, NH3 इसका कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि इसके पास में एक लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। आपको अगर ये भी नहीं पता है, आप हटा दीजिए इसको। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड विद द हाइड्रोजन NH3, and these hydrogen are attached with the central atom here. नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन मैंने अटैच करवा दिए। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के पास में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p3. 5 valence shell electrons are here, in which only 3 electrons are taking participate in the bond formation here. Means 2 electron as a lone pair. एक lone pair की तरह 2 electron यहाँ पर जो है वो present होंगे। Have a look now. Sigma, sigma and sigma. It has 3 sigma plus 1 lone pair. Overall 4. Number of hybrid orbital is 4, and the hybridization will sp3 here. sp3 hybridization geometry होगी आपके पास में टेट्राहेड्रल।
लेकिन यहाँ पे लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन की हमने बात की थी इन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, दैट इज VSEPR। और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इसलिए लोन पेयर जो है वो ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ पिरामिडल जो है वो शेप में प्रेजेंट होगा। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल व्हाइल द शेप विल बी पिरामिडल हेयर। चलिएगा बात करते हैं अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की, दैट इज H2O। यस, नेक्स्ट इज H2O, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल। Oxygen forms single bond in the single bond with the hydrogen here. ऑक्सीजन के पास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होते हैं? इट हैज 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन विच 1 and 2, only 2 electrons are taking participate in the bond formation here. How many remaining? 4 electrons are remaining here. और वो किस तरह से प्रेजेंट होंगे? lone pair of electron, there are 2 lone pairs, 2 lone pair जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। Now sigma bond, 1 single bond means sigma and the sigma. Now have a look, 1 lone pair and the 2 lone pair. 2 sigma and 2 lone pair are present here on oxygen, so it will be 4, and when the number of hybrid orbital is 4, the geometry will be sp3 here. चलिए नेक्स्ट CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो है वो असाइन कीजिए हाइब्रिडाइजेशन। Yes, CO2 molecule, carbon form 2 double bonds here with the oxygen. Have a look, sigma 1 pi, 1 sigma and 1 pi. In double bond there is 1 sigma and 1 pi. It means 2 sigma while 0 lone pair. देख लीजिए 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के taking participate here in the bond formation. That is why 2 sigma while 0 lone pair, it will be 2, and when the number of hybrid orbital is 2, geometry will be linear, hybridization will be sp hybridized है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं और केसेस की। Yes, next is PCl5 ले लीजिए। PCl5, फॉस्फोरस इज द मेंबर ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन के पास में जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने फॉस्फोरस के पास होंगे, दैट हैज 5। आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर निकालें, इट विल बी 5 हेयर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस इज 5 P3S2 सिस्टम है ये, तो ये आपके पास में जो है वो इट हैज द 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखिएगा 2 and 3 it will be 5. There are 5 valence shell electron on phosphorus and all the 5 are taking participate in the bond formation here. This is the PCl5. Structure of PCl5, all the 5 electrons 1 2 3 4 and 5, all the 5 valence shell electrons are taking participate in the bond formation. सिंगल बॉन्ड है, मीन सिग्मा होगा 1 2 3 4 5. Here is 5 sigma while 0 lone pair. It means it will be 5, and when the number of hybrid orbital is 5, then the geometry will be sp3d trigonal bipyramidal इसका geometry होगा, and the hybridization is sp3d here. चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ XeF4, जिनन का कोई मॉलिक्यूल जो है वो लेते हैं इस बार। जिनन, दिस इज द मेंबर ऑफ द ग्रुप नंबर 18। दिस इज मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 मीन्स नोबेल गैस, एंड इफ देयर इज नोबेल गैस, हमें पता है इनके लिए ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट हेयर। It means how many valence shell electrons are present here? 8 valence shell electrons are present here. किसके पास में? जिनन के पास में। चलिए मॉलिक्यूल की बात करते हैं। जिनन F4 means it is forming 4 single bonds with the fluorine here, right? 1 2 3 and 4. It means
4 electrons of xenon is taking participate here in the bond formation, तो अभी इसके पास में मैंने कहा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे 8, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम किया, इट विल बी 4 अगेन, राइट। 4 जो है वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, जबकि लोन पेयर कितना होगा, 2 pairs, it means 4 electrons. These are the electrons which are taking participate here. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे 8 में से 4 ने बॉन्ड बनाया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन minus bond pair of electron, we will get the valence shell electron here. 4 valence shell electron means valence shell electrons minus bond pair of electron, we will get the lone pair of electron. 4 lone pair of electron means 2 pairs, right? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, जबकि पेयर कितने हैं, ओनली 2 पेयर्स आर हेयर। तो देखिएगा 2 लोन पेयर्स आर हेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 and 4 हेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर हेयर, 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर एंड इट विल बी 6 व्हेन The number of hybrid orbital is 6. इसका मतलब आपके पास में जियोमेट्री होगी octahedral and the hybridization will be sp3d2 in this case. चलिएगा नेक्स्ट में एग्जाम्पल देती हूँ, आई एम गिविंग यू ए मॉलिक्यूल और वो आप जो है वो कीजिए सेट, दैट इज SF6. SF6 के लिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन असाइन कीजिए। इट हैज द हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. sp3d2। चलिए SF6 की बात करते हैं। सल्फर, यहां मैं इसको हटा देती हूं, इसी की जगह लेती हूं SF6 and we know it very well that sulfur has the member of this group number 16. sulfur is the member of the group number 16. इसका मतलब ऑक्सीजन फैमिली का ही ये मेंबर है, इसके पास में भी उतने ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे जितने कि किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं, एंड दैट इज 6. It has 6 valence shell electrons. All the 6 electrons are taking participate in the bond formation. It means how many? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 sigma while 0 lone pair. It means it has the number of hybrid orbital 6 and when the number of hybrid orbital is 6, आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए ये हुआ फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन विद द फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। मान लीजिए आपको जो है वो जियोमेट्री नहीं पता है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है ऑफ द मॉलिक्यूल। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वो हमें नहीं पता है, तो हम कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें नहीं पता कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, तो उस केस में हम जो है वो किस तरह से असाइन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सो कीप वॉचिंग। Yes, now we are talking about the second method by which we can assign the hybridization without knowing the structure of the molecule. So, the formula is number of hybrid orbital can be assigned by the formula half into valence shell electron plus monovalent atom minus cation plus anion, right? By this formula we can assign the hybridization here again. Half, इसको चलिए पूरा लिखते हैं हम, half multiply by valence shell electrons plus number of monovalent atom which is attached here with the central atom. Monovalent atom minus केटायन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इससे आप वापस से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए इस
फॉर्मूला से जो है वो कुछ एक मॉलिक्यूल्स की देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू टेक हियर दैट इज IF7। चलिए IF7 मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें तो हाफ, व्हाट इज द सेंट्रल एटम हेयर? ऑब्वियसली यस, जो नंबर में कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम इज आयोडीन हेयर। हाफ मल्टीप्लाई बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की हमें बात करनी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास में कितना होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, all these have the 7 electrons in the valence shell। फ्लोरीन का जो है वही क्लोरीन, वही ब्रोमीन और वही आयोडीन के लिए जो है वो होगा। एंड दीज ऑल हैव द 7 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। चलेगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम विच इज अटैच विद द सेंट्रल एटम हेयर, दैट इज 7 प्लस 7। सॉरी हाँ, मोनोवेलेंट फ्लोरीन कितना है? मोनोवेलेंट है, तो 7 प्लस 7 मोनोवेलेंट एटम्स आर अटैच हियर विद द आयोडीन। चलिएगा चार्ज की बात करूं तो -0, पॉजिटिव चार्ज नहीं है ऑन द मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है ऑन द मॉलिक्यूल। इट विल बी 14/2 एंड दिस इज 7 हेयर। इफ द number of hybrid orbital is 7, then the geometry will be pentagonal bipyramidal, while the hybridization will be sp3d3 hybridization this time, right? चलिए इस तरह से हम जो है वो असाइन करेंगे जो चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज होती है उनके लिए बहुत इजीली जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो असाइन किया जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी, लेकिन वो बहुत टिपिकल मेथड था, बहुत लेंथी मेथड था। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन असाइन द हाइब्रिडाइजेशन वेरी फास्टली। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यस, एक केस हम ले लेते हैं ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमोनियम की बात करते हैं। देयर इज NH4 प्लस। NH4 प्लस की बात कीजिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल? दैट हैज द फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, किसके? सेंट्रल एटम के। नाइट्रोजन हैज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नंबर ऑफ द मोनोवेलेंट एटम। हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, एक ही जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मोनोवेलेंट है। ऑल द 4 हाइड्रोजन विच इज अटैच विद द नाइट्रोजन, सारे के सारे मोनोवेलेंट है। तो हमने लिया that is valence shell electron plus monovalent atom माइनस देखिएगा क्या करना है आपको, केटायन मतलब माइनस पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज हियर? 1 प्लस नेगेटिव चार्ज, हियर इज नो नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल, तो ये आपके पास में हुआ हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 दैट इज 9 minus 1 8, this is 8/2, this is 4 and if the number of hybrid orbital is 4 then the hybridization will be sp3। ये sp3 जो है वो होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यस, सल्फेट SO4 2- this time, half valence shell electron on sulfur that is 6 plus monovalent atom। ऑक्सीजन इज डायवैलेंट, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, मतलब ये 0 है, माइनस पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज 2 माइनस मीन्स यहाँ 6 प्लस 2 दैट इज 8, अगेन 8/2 4, अगेन sp3 hybridization of the sulfur in SO4 2- molecule। और बात करते हैं। यस, नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, दैट इज NO3-। नाउ फॉर्मूला लगाइए, हाफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, यस इट इज 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ऑक्सीजन इज डायवेलेंट मीन्स मोनोवेलेंट एटम नहीं यहाँ पर अटैच कर रहे हैं, माइनस
कैटायन, कैटायन भी क्या है, नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये भी आपके पास में 0 होगा। प्लस एनायन, प्लस एनायन द नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज हेयर, ओनली 1, तो ये लीजिए इट विल बी 5 + 1 is 6 and 6/2 is 3. It means when the number of hybrid orbital is 3, the hybridization will be sp2 hybridization here. This is the hybridization sp2 of the nitrate molecule. NO3 माइनस में नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से चलिए एक केस हम और जो है वो लेते हैं, कीप वॉचिंग। H2O मॉलिक्यूल लेते हैं। H2O मॉलिक्यूल में जो है वो बात करते हैं, when we are talking about the H2O, half multiply by what is the central atom here, of course yes, oxygen is the central atom here, जो नंबर में कम होता है वही सेंट्रल एटम होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, एंड आई होप आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अब तक निकालने आ गए होंगे। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, एनी इशू to assign the valence shell electron, you can again watch the previous lectures, previous videos देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और valence shell electron ऑक्सीजन के पास में कितना है, it is 6 here। monovalent atom is 2 here, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इट विल बी 6 + 2 8/2 एंड इट इज 4। व्हेन इट इज 4 द हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। तो ये हुआ अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल H2O में हाइब्रिडाइजेशन। और इसी के साथ में जो है वो आपको ये क्लास जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन असाइन करने के जो है वो 2 तरीके जो है वो देखे। आप ये तरीका जो है वो अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बहुत फास्टली जो है वो असाइन कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर है। सो प्रैक्टिस कीजिए, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।